Sir, thank you very much. Let me first start by thanking the honorable members who have participated in the debate. I have noted that 16 of them. It's been a very rich discussion. From my personal point of view, I draw immense satisfaction that not a single honorable member has opposed the bill. Some have expressed reservations, and my distinguished senior colleague, Shri Adhir Ranjan Chaudhary, whilst recalling that I had said that this is a far-sighted and revolutionary initiative and step, he said perhaps I should have added that it is also a politically motivated, pole-sighted, far-sighted, pole-sighted, the implication being that there has a political motivation therein. Well, I want to thank all the honorable members. I have, in the interest of efficiency, and if you permit, sir, I will divide my response into 3 segments. One is a segment where honorable members have raised very specific questions which require an answer from the government in terms of our understanding, in terms of our intent, in terms of the process that we have put in place and how we propose to implement. So I will go through each of the points made by the honorable members. But there are 1 or 2 additional points which I think emanate essentially from the fact that I have spent more time and more sleepless nights on the bill, on its drafting, on the regulations which have been notified, and honorable members clearly preoccupied as they are with a much wider canvas, they've not had a chance to look at that. So I will clarify 1 or 2. And finally, is the more easier political response which is required, which has come from some honorable members, my distinguished friend, Shri Dayanidhi Maran and others. They have recalled what was done in Chennai, in the state of Tamil Nadu. Some have said, why don't you do it from the rest of India? I think there's a basic misunderstanding. Perhaps we have not put in front of the honorable members as to what it is. But let me start with this pole-sighted. Sir, let me draw your attention through you, the attention of the House, to, and I regret the fact that my friend Shri Bhagwant Maan is not present in the House, to how much there has been a vilification of facts in the public domain. And I say this with a degree of seriousness. I think my friend and my colleague, Mr. Ramesh Biduri, has collated all the government letters, all the letters which have been written to the Honorable Chief Minister of Delhi, what the government of the capital, of the national capital territory of Delhi has said before the court, and what I have exchanged with him. I mean, this information which I'm placing before the House is in the public domain. I have not, on letter numbers, etc. Sir, the crux of the matter is that the regulations on the basis of which the 1,769 colonies have been identified goes back to a Gazette notification of 2008. I quoted it when I introduced the bill. So when an honorable member asked me, why this 2008? Because that is the most comprehensive notification we have, listing 79. I was asked by another honorable member from the Treasury benches, I asked, he said, but what about those who are not fitting in? The government is very clear in a transparent manner. We have excluded some colonies, and I'll come to those, why we have excluded them, and I will also state with a sense of responsibility, we will address those colonies at a subsequent stage. Now, if some colony is there which does not fit into either or where there has been a wrong fitting, we will do it. But if you do it now, it will just open the can of worms. What we need to do is to move ahead. And I can say with confidence, if we had come with those 69 colonies first, you would have said, ye soot boot ki sarkar hai, ye to garib aadmi ka dhyan hi nahi rakhte hain. So we are starting with, as my sister said, we're starting with those people who belong to economically weaker sections, who are disadvantaged, and we come to these 1,731 colonies to start with. We will address the others at a subsequent stage. Sir, 2008, we had a Gazette notification which identified these 1,790 colonies. I don't want to get into a discussion as to who started the metro, because I'm also the minister responsible for metro. This is not a discussion on who started the metro.
This is not a question whether Chief Minister X did more than Chief Minister Y, former chief. I belong to a different tradition. I've been a civil servant for 4 decades. I think every chief minister of this state has contributed to making Delhi what it is. That is a fact. Equally, I would say, if we are in a bit of a mess, and if the situation in Delhi, both in terms of atmospheric pollution, in terms of congestion, should have been better, each chief minister also bears part of the responsibility. But I want to digress from that, and I want to come simply to the issue of these unauthorized colonies. I would like to repeat what I said initially. The process of registering these colonies was continuing till the Supreme Court, Honorable Supreme Court, in a judgment in 2011 in the Suraj Lamp versus the state of Haryana, came to the conclusion, or rather this is a finding which I read out, that no longer will they recognize these 5 kinds of documents: general power of attorney, will, agreement to sell, for the purpose of registration. That is where the problem starts. Now, it was clear to any government which was responsible at that point of time in Delhi or the center that you had to deal with this problem. You cannot allow colonies and large amounts of areas. There are 40, 50 lakh people living there. It is spread over, I said, something like 43,000 acres. I've also mentioned a square kilometer when I was introducing it. If you allow that to happen, that is a recipe for total chaos. So we had to deal with it. What was the objective? Very clear. How did we have to deal with it? Also very clear. The government of the capital region, national capital territory of Delhi, was required to map these colonies. Because if you don't know what the colonies are, you cannot go to the next stage. Now, I don't again want to get into the blame game. The fact of the matter is, there has been correspondence in the public domain. I have this letter which I've written to the Chief Minister. I did not get a reply. The Modi government came to office in May 2014. I became a minister in September of 2017, September. When I was looking at all the issues which were before us, बिल्कुल स्पष्ट हो गया उस समय कि दिल्ली का सुधार जो है इस अनऑथराइज्ड कॉलोनीज की रेगुलराइजेशन, और रेगुलराइजेशन तो अंग्रेजी का शब्द है, पर इनको मलकाना हक, जब तक यहाँ पे जो हमारे नागरिक हैं, ये शब्द इस्तेमाल किया गया कि वो डिसएडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज क्यों हैं? क्योंकि हमारी नीतियां ठीक नहीं है। ये कहना है पुअर पीपल लिविंग इन अनऑथराइज्ड कॉलोनी, दे आर पुअर बिकॉज योर पॉलिसीज वर पुअर। अगेन मैं ये नहीं कहना चाहता हूं किसकी गलती है, आपकी है, हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो 2017 सितंबर में हमने ये कॉरेस्पॉन्डेंस चालू की। हमने दिल्ली सरकार को लिखा, कई बार केजरीवाल जी मुझे मिलने आए, मैंने उनको लंच भी खिलाया, और ये हमेशा मुझसे कहते गए हमें थोड़ा समय दीजिए। क्या उन्होंने कहा मुझे कि अभी हम कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट देने वाले हैं, वो कंपनी जो है ये इसकी डिजिटल मैपिंग करेगी। मुझसे ये प्रश्न पूछा गया कि ये सैटेलाइट इमेजरी होगी या फिजिकल होगी? दोनों। सैटेलाइट इमेजरी से आपको इमेजेस मिलेंगी, वो इमेजेस आप अपलोड करेंगे अपने पोर्टल पे, जो हमने ऑलरेडी कर दिया है, प्रोसेस चालू हो गई है। उसके बाद हमारे लोग जाके वहां पे जो बाउंड्रीज हैं उनको फिजिकली वेरीफाई करेंगे, आरडब्ल्यूएस से पूछेंगे कि भाई ये आपकी ठीक है, जो 15 दिन का समय दिया जाएगा। तो उसके बाद दूसरा स्टेज आएगा, एक पोर्टल बनाएंगे और उस पोर्टल में इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन और मलकाना हक क्या बात होगा। वो एक बारी मलकाना हक मिल गया, फिर वो रजिस्ट्री करवा सकते हैं। इस दौरान सभापति महोदय, मुझे चिंता इस बात पे हो रही नहीं है कि फेक नैरेटिव बन रहा है, वो तो राजनीतिक जो एटमॉस्फेयर है उसमें जिन लोगों ने रुकावट डाली रखी, अब वो कह रहे हैं कि जल्दी करो।
हमने कब यह निर्णय लिया? उस समय लिया जब केजरीवाल जी की सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में जाके ये एक एफिडेविट दिया कि हमें 2 साल का और समय चाहिए। हम अगर इसमें पोल साइटेड है, 2017 में मैं नया मंत्री बना था, उस समय तो कोई पोल आने वाला नहीं है। और मैं डिस्टिंग्विश्ड मित्र हमारे अधीर रंजन चौधरी जी से कहना चाहूंगा, हमारे यहाँ कुछ समस्या ऐसी बन गई है कि आप कोई काम कभी भी करिए, कोई ना कोई पोल तो आ ही रहा होगा। मैंने आज कर ले तो आप कह सकते हैं दिल्ली में पोल आ रहा है या छत्तीसगढ़ में आ रहा है, अगर 1 साल बाद करें तो कहीं और आ रहा है पोल। तो या तो एक बारी नेशनल एक ही पोल करवा दीजिए तो हमारी समस्या हल हो जाए, नहीं तो हमेशा ये कारण रहेगा कि पोल साइटेड है। अच्छा, let me now come down to some of the specific issues which have been raised by honorable members. और अगर आप मेरे को कहाँ है यार? My distinguished friend, the Honorable Dayanidhi Maran said, be large-hearted, make it free. I have a lot of respect for that thinking, but I belong to a different thinking. If you want to get anything done, if you make it free, people will not respect the fact. क्योंकि आप मुफ्त में दे रहे हैं और कह रहे हैं इसमें कुछ है नहीं। तो हमने जो रेट्स तय किए हैं, मैंने एक अभी कैलकुलेशन भी करवाई है कि कितने रेट्स मिलेंगे। हर एक एरिया का एक सर्कल रेट होता है। अब ये अनऑथराइज्ड कॉलोनीज ए और बी जोन्स में नहीं है दिल्ली शहर में, वो है C, D, E, F, G, H में। And I speak in English. I'm sure the translation is very good, but again I have a problem. If I have a default response, I normally go into English. So that's because you kept me outside the country for 40 years, but I'm switching back to Hindi. अच्छा, ऐसा है, कॉलोनी H में अगर 100 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट होगा, टोटल 100 स्क्वायर यार्ड तक, क्योंकि यहाँ पे कॉलोनी यार्ड्स की है तो 100 स्क्वायर मीटर्स, हाँ, तो टोटल इसमें चार्ज लगेगा 1217 रुपए। ये ज्यादा है या कम है तो आपकी आर्थिक स्थिति पर डिपेंड करता है। मेरे लिए ये मुफ्त के बराबर है। जिन लोगों को ये राइट्स मिलने वाले हैं और इन मलकाना हक मिलने के बाद जो वहाँ पे वो लोन ले पाएंगे, वो प्रॉपर्टी को डेवलप कर पाएंगे, जो प्रॉपर्टी का रेट होगा, मैंने आज तक नहीं, and I want to tell the honorable member, I have not heard from a single resident in these so-called unauthorized colonies to tell me that they want it free. Nobody has come to me because the rates are so reasonable. And there is a regulation, there is a notification where these things have been put up on the DDA's website. DDA's website, please have a look at it, but I'm open to discussion, but no one is suggesting it there that we should do it. Will the government create social infrastructure in these colonies? अध्यक्ष महोदय, बात सही है, पिछले 11 साल पे इन पे कुछ किया नहीं है। कॉलोनियाँ बढ़ती जा रही हैं, यहाँ पे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जो सिविक सुविधाएं हैं वो है नहीं, इसलिए हमें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाना होगा और ये सरकार बनाएगी। हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम ये क्या करेंगे कि यहाँ पे जो लिबरलाइज्ड डेवलपमेंट कंट्रोल नॉर्म्स हैं, वेकेंट प्लॉट्स जो हैं जहाँ खाली जमीन है, उन पे हम लिबरलाइज्ड डेवलपमेंट नॉर्म्स इस्तेमाल करके हम रीडेवलपमेंट करेंगे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की। इसलिए रेगुलेशंस जो हैं हमने नोटिफाई कर दिए। अगर आप एक बार उन रेगुलेशंस को देख ले, मुझे पूरा विश्वास है कि उसके बाद कोई डाउट किसी के मन में नहीं रहेगा। और जो चार्ज कलेक्ट होगा, मान लीजिए एज के लिए 1200 रुपए, किसी के लिए 4000 रुपए, इसको एक हम स्पेशल फंड में रखेंगे जिसमें स्पेशल डेवलपमेंट फंड, तो हम इन कॉलोनीज पे लगाएंगे। और मैं यहाँ पे कह रहा हूँ विद अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अर्बन डेवलपमेंट फंड से जहाँ से भी लगाना हो हम लगाएंगे, पर इसमें और सुधार होगा। एक बारी ये रेगुलराइजेशन हो जाए, मलकाना हक मिल जाए, तो हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो अपने MP लैड फंड से भी पैसा लगा पाएंगे और बाकी भी रिसोर्सेज आएंगी। मैं समझता हूँ कि ये जो 40-50 लाख हमारे भाई और बहन यहाँ पे रह रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस दिल्ली का पूरा नक्शा एकदम बदल जाएगा। और ये जो कॉलोनीज जिनको हम अनऑथराइज कह रही हैं,
क्या हो सकता है? मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में जल्द, क्योंकि ये काम बहुत तेजी से हो रहा है, ये यहाँ पे लैंड प्राइसेस और लोगों को इसमें प्राइड होगी, ईज ऑफ लिविंग होगी, और ये जल्दी डेमोन्स्ट्रेट हो जाएगा। अब दयानिधि मारन जी ने, माननीय मंत्री जी एक मिनट, माननीय सदस्यगणों, सभा की सहमति हो तो वर्तमान विधेयक जो चल रहा है और शून्यकाल की समाप्ति तक सदन का समय बढ़ाया जा सकता है। शून्यकाल की समाप्ति तक। माननीय मंत्री जी। देखिए, दयानिधि मारन जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। It's an important point that why was technology not used to do this digital mapping? And the submission I want to make through you, Honorable Speaker, is that technology is available to everyone. You can get satellite imagery. You can even get sub-meter imagery where you can see the numbers on a scooter plate. But you must have the political will to do it. You must have the political will to use that technology in order to get something done. I have been very worried because I am new to this operating environment. और मुझे चिंता ये हुई है, अभी एक आदरणीय सदस्य कह रहे थे कि जो बाहर का रेट है यहाँ पे अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में तो उसका 10% रेट है। सही, that's correct. But what is worrying me is very responsible people are going ahead and buying property in those unauthorized colonies. Why? Because they are looking at it as an investment. Now, if you get into this trap that you want to buy property in an unauthorized colony in order to produce a land bank and then you authorize it, then you will make a killing in profit. I think that the decision not to act for so long, somewhere at a subterranean level, I'm not making any accusation, we should be very careful why it has taken so long. Why are we doing it today? I would have done it in 2017. I was told by the Honorable Chief Minister, हमें आप 2 साल दीजिए, अभी करने वाले हैं। ये वैसे ही है जो बसों की बात होती है, सभापति महोदय, अगर हम दिल्ली को सुधारना होगा, हमें मेट्रो सिस्टम बनाना होगा। इस समय दिल्ली में 380 किलोमीटर मेट्रो सिस्टम ऑपरेशनल है, 380। जब हम फेज 4 पे लाएंगे ये 500 तक चला जाएगा। पर मेट्रो में भी, बाकी चीजों में भी हमें जो कोऑपरेशन हम लोग चाहते हैं वो नहीं मिलती। हमें किसी बात पे हाँ जी इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे रहे हैं, इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे रहे हैं पर पैसा नहीं देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको डायरेक्ट किया कि हमारी वो सहायता करें और कोऑपरेट करें। मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं फैक्ट्स जो पब्लिक डोमेन में है, हमारा जो आरआरटीएस का भी 82 किलोमीटर का कॉरिडोर है शायद मेरठ का, वो भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पे, या एग्जैक्टली। सो आई एम मेकिंग अ पॉइंट, we decided to go ahead and believe me, Delhi elections were still very far off. ये हमने काम कब शुरू किया? क्योंकि सरकार की जो एजेंसीज होती है, डिसीजन मेकिंग होता है, उसको नेविगेट करना आप शुरू करते हैं। मैं आपको 2 उदाहरण बता, ये पिछले चुनाव के पहले हम इसको सेंट्रल कैबिनेट में ले आए थे। और कब लाए हम केंद्रीय मंत्रिमंडल के सामने? तब लाए जब हमें दिल्ली की सरकार ने कहा कि 2021 से पहले काम हो ही नहीं सकता। तो मैं बता रहा हूं आपको, जब अप्रैल मई 2019 के चुनाव के पहले हम लाए, उस समय दिल्ली चुनाव हमारे होराइजन में भी नहीं था, उस समय नेशनल इलेक्शन थी। तो आई जस्ट वांट टू से रेवोल्यूशनरी, फार साइटेड, यस, pole sighted, maybe you and I can have a coffee and discuss what is pole sighted. Maybe we have all become politicians, you know, all of us, no matter what we say, the words we use, it becomes pole sighted. But I'm happy to have that discussion. It's not pole sighted, sir. Acha, my colleague Pratima Mondalji said that these names of these colonies should not connote either caste, etc. But I just want to tell the honorable member, government has no role in this. Government does not go giving names to particular colonies.
I can tell you, I'm dealing with a different category. It's not unauthorized. This is, the Katputli colony. It's called the Katputli colonies because it has artisans there. And there we are taking a slum. Again, I don't like to use the word slum, informal settlement. वहाँ पे 2800 परिवार जो slum like conditions में रहते थे, हम उनके लिए एक नई मॉडर्न स्ट्रक्चर बना के दे रहे हैं. और ये दिसंबर तक हम 3 टावर तैयार कर देने थे हमको, पर ये जो एनजीटी की तरफ से कंस्ट्रक्शन पे बैन लगा है, अध्यक्ष महोदय, उससे थोड़ी डिले हुई, पर दिसंबर के नहीं तो जनवरी में इसको जल्दी कर देंगे. पर ये भी काम 6-7 साल से चल रहा था. सो वी हैव नो नेम रोल इन असाइनिंग नेम्स. जहां तक आई बात, उन्होंने ये भी बात की अफ्लुएंट कॉलोनीज की, आपने की और कई मेंबर्स ने की, हमारी पार्टी के भी कई लिखा है. देखिए, एक बात सही है कि जब आप कोई ऐसा रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी स्टेप लेने जाते हैं तो उसमें थोड़ी सी चिंता होती है. चिंता ये होती है कि इसको कितनी स्पीड में कर पाएंगे, ये काम रुक तो नहीं रहेगा, तो ये जो लीगल प्रिंसिपल आप प्रोड्यूस कर रहे हैं ये और जगह भी अप्लाई होगा. बिल्कुल होगा. अगर हम मान लेते हैं कि कोई चीज, कोई कॉलोनी, वहां पे हम कन्फर्मेंट ऑफ राइट्स इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि ये प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन थ्रू दी जीपीए हुआ या सेल या एग्रीमेंट टू सेल विल से हुआ, तो ये अगर अप्लाई करेगा और कैटेगरीज में, खास करके उन जगह में जहां पे अफ्लुएंट, जिसको अफ्लुएंट और वेल टू डू सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है, तो मेरा उसमें यही रिस्पॉन्स है, इसको हम अलग से एड्रेस करेंगे. पर इस समय हमने फॉर सेक ऑफ क्लैरिटी वी हैव एक्सक्लूडेड दो 65 कॉलोनीज, क्योंकि इस समय काम था ये जो अनऑथराइज, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या लोअर इनकम ग्रुप पीपल का है, और इसमें जनसंख्या बहुत है 40-50, पर दूसरे को भी हम सब्सिक्वेंट स्टेज पे एड्रेस करेंगे. इसमें एक और प्रश्न ये उठता है, मेरे पास लोग आते हैं रिप्रेजेंटेशन लेके कि कई कॉलोनीज की कैटेगराइजेशन ठीक नहीं हुई है, मैं उसको भी एड्रेस करूंगा जल्द. पर मीनवाइल हमने 2 पोर्टल बनाए हैं. एक सारी सैटेलाइट इमेजरी को अपलोड करके, सैटेलाइट इमेजरी तो सब जगह अवेलेबल होती है, but you have to utilize that imagery and convert it into PDF files. Once you convert it into PDF files, you can upload it on your portal, और फिर physical dimension जो है उसकी, वो physical dimension आप फोटो खींचेंगे चारों कोनों से, आप RWs को देंगे 15 दिन का समय कि वो आपके अपने व्यूज भेज सके, और 15 दिन के बाद एक बारी जब ये सारी इंफॉर्मेशन अपलोड हो जाएगी, मुझे पूरा विश्वास है ये काम बड़ी तेजी से आगे बढ़ेगा दूसरे पोर्टल के माध्यम से. सवाल ये हुआ कि मान लीजिए, क्योंकि ये सारी दिल्ली की बाइंग एंड सेलिंग हैज बीन ऑन जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी. क्यों है जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, अध्यक्ष महोदय? इसका बड़ा स्पष्ट कारण है, लोग स्टैंप ड्यूटी नहीं देना चाहते, तो एक कल्चर बन गई कि सब प्रॉपर्टीज जीपीए पे हो जाए. अब कोर्ट ने इसको रुकावट डाल दी, तो हो सकता है पोजेशन, अनदर ऑनरेबल मेंबर आस्क्ड, आप पोजेशन पे क्यों इंसिस्ट करते हैं? नहीं, हम पोजेशन खाली पे नहीं इंसिस्ट करते. मान लीजिए एक कहीं प्रॉपर्टी है एक्स के 2 दावेदार आ जाते हैं, एक के बाद 5 डॉक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि कई प्रॉपर्टीज 1, 2, 3 बार बिकी हैं, और दूसरे के पास ये जीपीए है, तो हम देखेंगे कौन सा लेटेस्ट है, क्या ट्रांजैक्शन है, रह कौन रहा है वहां पे. अगर दोनों में से एक वहां रह रहा है, then possession will get additional weightage. But possession is not the only one, and if you read the notifications, it becomes very, very clear. हमारे दानिश अली जी ने कहा कि अगर आप एक तरफ तो हम बड़ी बातें करते हैं स्वच्छता की, देखिए मैं उनसे यही सिर्फ सबमिट करना चाहूंगा कि जो भी है, जो स्वच्छता का आंदोलन हुआ है, दिस स्टार्टेड एज अ प्रोजेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट, पर एक जन आंदोलन बन गया है. मेरी तो मंत्रालय सिर्फ अर्बन शहरी क्षेत्र के जो हमारे काम है, जो हमने 65 लाख से अधिक इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट्स बनाए हैं, हमने पब्लिक कम्युनिटी टॉयलेट्स बनाए हैं, सारे टारगेट्स मीट किए हैं. पर आपका जो पॉइंट है अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के, आप वहां जाके देखिए क्या स्थिति है. तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा, इस निर्णय से, मलकाना हक देने से, यहां पे जो बदलाव आएगा, यहां पे जो परिवर्तन आएगा,
वहां पे देखेंगे स्वच्छता सिचुएशन एकदम इंप्रूव करेगी। उसका कारण कई है, एक तो फंड्स आ सकेंगे बाहर से, दूसरा यहाँ अकाउंटेबिलिटी होगी। हमारे यहाँ कुछ ऐसी कल्चर बना हुआ है कि अगर आप कोई करिए तो अनऑथराइज है, कह रहे हैं इलीगल। इलीगल नहीं था, वो खरीदा लो किसी ने बेचा, किसी ने खरीदा, पर वो रजिस्ट्री नहीं हो पाई क्योंकि सूरज लैंप वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के डिसीजंस के कारण। अच्छा, श्री डी.के. सुरेश जी ने कहा, और वही पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, कि ही वेलकम द बिल, पर उन्होंने कहा ये बाकी देश के लिए क्यों नहीं कर देते। आई वॉन्ट टू सबमिट विद ऑल ह्यूमिलिटी थ्रू यू सर, लैंड और कॉलोनाइजेशन स्टेट सब्जेक्ट्स हैं, इसमें केंद्रीय सरकार का कोई रोल नहीं है। कोई और सरकार करना चाहे बड़ी खुशी से करिए, हम दिल्ली में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली में लैंड जो है यूनियन ऑफ इंडिया के पास है। तो इसमें यह नहीं कि हम सिर्फ दिल्ली में चुनाव आ रहा है इसलिए दिल्ली में करने जा रहे हैं, हम बाकी जगह कर ही नहीं सकते, स्टेट गवर्नमेंट्स कर सकती हैं। और मैं ये नहीं उनको कह रहा कि करें, अगर वहां पे कहीं समस्या हो, तमिलनाडु के जो हमारे ऑनरेबल मेंबर्स हैं उन्होंने कहा है कि उनके लीडर ने ऑलरेडी 2007 में कुछ किया था, तो ये स्टेट सब्जेक्ट है, लैंड कॉलोनी 1970 when I said they're free to do it because land is a state subject। अब जब हमसे पूछा जाता है कि इनफॉर्मल सेटलमेंट स्लम्स हैं कई जगह, आप क्या करें, अरे भाई हमको नहीं करना है ना, तो हमारे पास डेटा है, लैंड स्टेट सब्जेक्ट है, जिस स्टेट को लगता है कि वहां पे इनफॉर्मल सेटलमेंट्स या स्लम ज्यादा उसमें सुधार करे। तो इसलिए कोई इसमें हमारा कोई बहुत गहरी चाल नहीं है कि सिर्फ दिल्ली के लिए कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली में चुनाव, ये हम 3 साल पहले दिल्ली के लिए करना चाह रहे थे। अरे भाई शुरू तो अगर केजरीवाल जी इसको इसमें इसके आई एम नॉट यील्डिंग सर इफ वी आई एम नॉट यील्डिंग एंड आई डोंट ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं जिसमें राजनीतिक रोटियां सेकी जा सकती हैं, वह वैसी चीज नहीं है। यहाँ पे एविडेंस है कि पिछले 3 साल से वो हमको आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे। अगर 3 साल पहले किया होगा तो आप कहते हैं हमने ये हरियाणा के चुनाव के लिए किया या किसी और के लिए, तो ये बात बिल्कुल केजरीवाल को काम नहीं करने दे रहे, फिर ये कहते हैं। नहीं फिर के माननीय मंत्री जी, आप किसी माननीय सदस्य का कोई जवाब मत दो। So I think, Honorable Speaker, I have responded, at least I've made an attempt to respond to 2 questions. Why have we been delaying it so long, and the 2008 notification, why that? It is entirely possible that हम 1731 colonies की digital uploading, उन जो 40 लाख वहाँ पे नागरिक रहते हैं, मुझे लगता है कम से कम 7-8 लाख लोग क्लेम करके आएंगे। बस एक परिवार में भी अगर 3-4-5 लोग हों तो 40 लाख बन जाता है। 7 लाख इन करने के बाद अगर हमें पता लगता है और कई कॉलोनी है, दैट इज अ डिसीजन व्हिच वी विल हैव टू विजिट। पर मुझे लग रहा है कि इस एक झटके में हम ये कर दें तो दिल्ली में एक बहुत बड़ा सुधार आ जाएगा। टू द ऑनरेबल N.K. प्रेमचंद्र जी, I listened to his comments very carefully. I have 2 short comments. एक तो मीनाक्षी जी ने जवाब कुछ दिया, बट अगर आप जो हमने रेगुलेशंस नोटिफाई किए हैं वो आप देख लें, मैं आपको कॉपी भेज दूंगा, दे ऑन द DDA वेबसाइट। और जो इनकम टैक्स की रेफरेंस है वो हमने ऑलरेडी कॉरिजेंडा इशू किया हुआ है। नो then I think that's something we have to rectify. We have this corrigenda which is dated 22nd November with the bill, which, as I said, that is for us, but I'll send you a copy. It very clearly said in point 4, page 3, line 3, for income tax 1917 or read or. So that's been omitted there. The bill, legislative drafting, I know, is a special skill. 2-3 व्यक्ति बैठ जाएं और 2-3 उनमें से 2-3 में से 2 अगर लॉयर्स हों, वकील हों, तो लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग बहुत इंटरेस्टिंग हो सकती है। पर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, ये जल्द में नहीं हुई है। इनफैक्ट मैं आपसे एक और बात शेयर करना चाहता हूं। कुछ हफ्ते पहले मुझे प्रधानमंत्री जी और विदेश मंत्री जी ने कहा था कि मैं कुछ बाहर के जो राजदूत हैं उनके साथ अमृतसर जाऊं, क्योंकि वो गुरु नानक देव जी की 550th बर्थ एनिवर्सरी। तो जब मैं वहाँ था और मुझे पता लगा कि द प्रेसिडेंट हैज ऑलरेडी कन्वीन्ड द सेशन ऑफ पार्लियामेंट, अगले सुबह ये इशू कैबिनेट में लिस्टेड था, मैंने वहाँ से फ़ोन किया कि इसको विड्रॉ कर लो। उस समय पार्लियामेंट वाज नॉट इन सेशन
और हम ये चाह रहे थे जल्दी में, हम तो ऑर्डिनेंस लाने के चाह रहे थे। उसके बाद क्या हुआ कि हमने विड्रॉ किया, उसके बाद ड्राफ्टिंग की। इसलिए हमारे से ये नहीं है क्योंकि चुनाव के कारण ला रहे, ये काम पिछले 8-9 महीने से चल रहा है। और अगर हमें पहले 2017 में ही 2018 में किया, ये काम अब तक कंप्लीट हो गया होता। बट अभी भी हमारी ये कोशिश रहेगी कि इंडिविजुअल्स जो आएंगे अप्लाई करेंगे, जब दूसरा पोर्टल 16 दिसंबर को शुरू हो जाएगा, चालू हो जाएगा, और जो करने के बाद उनको रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी। अब यहाँ पे मैं केजरीवाल जी को थोड़ी सी आई वांट टू कॉशन हिम, वो रोज स्टेटमेंट दे देते हैं जो ठीक नहीं होती। एक दिन कहा कि ये तो लेजिस्लेटिव बिजनेस में लिस्टेड ही नहीं है, और महात्मा गांधी जी के वहां पे जाके नारे लगाने शुरू किए कि सदन में भी बोले। पर हुआ क्या, अरे हम एक कैबिनेट में नहीं लाए, दूसरी कैबिनेट में लाए, इसमें भी समय लगता है। पर उसके बाद कहना कि ये तो लिस्टेड नहीं है, दिल्ली की जनता के साथ केंद्रीय सरकार धोखा करे। अरे भाई, शीशा लेके देखो आपने कितनी रुकावट डाली है। पर इसमें मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, दी ऑपरेटिव प्रोविजंस, वो कह रहे 3 दिन में रजिस्ट्री करा दो। भाई साहब ध्यान से, रजिस्ट्री हम नहीं करवाएंगे, डीडीए नहीं करवाएगा, रजिस्ट्री करवाएगी दिल्ली की सरकार। और आने पैसे लेके करेंगे वैसे करें, नॉट द इशू। एक दिन में रजिस्ट्रार कितनी प्रॉपर्टीज को रजिस्टर कर सकता है, यह सवाल पूछना चाहिए। मेरे हिसाब से मैकेनिकली आप करें तो मुझे लगता है केजरीवाल की ये मुंह से कही उनको खुद ही ना खानी पड़ जाए। क्योंकि अगर 3 दिन में करा दो तो उनको बोलो ये जो उनकी रजिस्ट्री है हम तो करवा देंगे, हम तो सबका वो सेकंड पोर्टल पे करा के उसके बाद करें कि 3 दिन में होती या 30 दिन पे, हमारी तरफ से कोई कसर नहीं रही। नहीं, मैं तो दिल्ली सरकार की बात कर रहा हूं। हाँ, नहीं, मैं डिसिप्लिन्ड मेंबर हूं राज्यसभा का। मुझे जो गाइडेंस मिलेगी सभापति महोदय से मैं बिल्कुल करूंगा। मैं सर कंक्लूड करना चाहूंगा, सिर्फ 3 चीजें कहता हूं कि ये जो इस पे रुकावटें लाई गई, जो काम 11 साल में नहीं हुआ, इसको हम 3 महीने नहीं, हम 30 दिन में करके कोशिश करके इसको पूरा करेंगे, पहली बात। और दूसरी बात, हम सिर्फ कानून ला के पोर्टल बना के नहीं किया। मैंने डीडीए से ये रिक्वेस्ट किया कि हेल्प सेंटर्स वो लगाए हर एक अनऑथराइज्ड कॉलोनी के अंदर। उन्होंने पहले कहा था 25 लगाए, हमने जब मैंने कंसल्टेशन किए गृह मंत्री जी के साथ, बाकी उन्होंने मीटिंग ली, हमने कहा 25 मत लगाओ, 50 या 75 लगा दो। मतलब कोई भी ऐसा नागरिक ना हो जो वहां रहता हो जिसको जो सहायता मिलने में कोई कमी हो। और तीसरी चीज मैं यही कहना चाहूंगा, ये बहुत रेवोल्यूशनरी स्टेप है, हो सकता है इसको इंप्लीमेंट करने में, जो मैं अपने साथियों से हमेशा कहता हूं, कहीं अगर कोई छोटी सी कमी रह गई, वी आर अवेलेबल on 24 hours into 7, and there are any implementing difficulties, लेफ्टिनेंट गवर्नर, डीडीए, हाउसिंग मिनिस्ट्री और बाकी जो एजेंसीज हैं, हम आपके साथ बैठ के इस काम को इस बारी तोड़ ले जाके, वी हैव टू एंड दिस इनजस्टिस व्हिच हैज बीन गोइंग ऑन। थैंक यू वेरी मच सर।